UK एक ऐसी जगह है which gives you lot of options as dentist. UK professional, any profession you take, you got to be ready for learning because UK doesn't want you to be just intelligent. They want to be wisely intelligent. वेलकम टू आवर शो डॉक्टर स्वाति मान। Thank you. आप सबको जितने भी ऑडियंस हैं सबको मज़ा आने वाला है क्योंकि डॉक्टर स्वाति मान जो है वो यूके बेस्ड है। यूके के अंदर इनके खुद के डेंटल क्लिनिक्स हैं जो कि रन करते हैं और साथ में खुद भी डेंटिस्ट हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर। और सबसे बड़ी बात कि अपने यहीं इंडिया से लेके यूके में डेंटिस्ट बनना, पूरी मेडिकल इंडस्ट्री सेटअप करना, पूरा बिजनेस सेटअप करना, उसकी सारी की जिस्ट जो है वो आज आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाली है। तो जो बच्चे या जो पेरेंट्स अपने बच्चों का फ्यूचर देख रहे हैं मेडिकल के अंदर या जो प्रोफेशनल्स ऑलरेडी हैं और सोच रहे हैं कि हम यूके कैसे जाएंगे, तो आज इस पॉडकास्ट में आपको सारे जवाब मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड एनलाइटनिंग आवर audience in this podcast. Thank you. It's a pleasure for me as well, and thank you for such a lovely introduction. I'll try my best to pass as much information as possible. तो आपने जैसे यूके के अंदर ये सारा सेटअप करा, 1 लाख से ऊपर आपने करीब करीब पेशेंट्स देख दिए, कई सारे क्लिनिक्स से आपको कॉल आते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आपका इतना बड़ा नाम है और स्पेसिफिकली जो डेंटिस्ट के अंदर भी आपने नॉर्मल जो प्रोसेस है उसमें नहीं जाके आपने कॉस्मेटिक्स पे इतना ध्यान दिया। तो ये सब कैसे मुमकिन हो पाया और क्या चीज़ें हैं जो आप यूके के अंदर स्पेशली आपकी हो पा रही हैं? Well, answering the question कि मैंने cosmetic dentistry क्यों चुना, I've always been a person of smile, you know. I personally used to feel any profession you go, your personality, you carry a personality, you carry an energy, and smile is a very vital part of it. When you smile, if you have a good smile, and if you carry your smile well, that was my main trigger point to start cosmetic dentistry as my main passion or as my main field of dentistry. And UK एक ऐसी जगह है which gives you lot of options as dentist because मैंने भी graduation मेरी इंडिया से ही की है। जब ग्रेजुएशन प्रोसेस में आप होते हो तो आप इतना सोचते नहीं हो। What you think of is, okay, this is my professional branch, this is what I want to achieve, I'll open a clinic one day or I'll work under somebody or anything like that. But UK is a land which gives you a lot of opportunities, especially for dentistry. And talking about this 14 years ago, India is budding, of course, but for UK people and for Western people, this has always been this is a part of health, plus this is a part of the beauty, you know, you carry your confidence with it. Definitely. So this was the part when I landed in UK, when I managed to happen in UK, that's when I thought, where do I want to invest my energy of dentistry? What do I want to do? Because UK में क्या है? UK में we have NHS, which is a National Health Services, जो आपको basic dentistry provide करता है. It's like a dentist getting a government job. Safe, easy, good paying job. और last 1 साल में there have been a 20,000 opportunities, new opportunities for dentists. So it's a great place to be. लेकिन मुझे I wasn't into that because I was like, ये तो हमें मिलता ही है. What can we do to spark this profession ताकि we see that there is a learning phase in dentistry as well. So इस वजह से मैंने cosmetic dentistry को, which is again a healthy cosmetic dentistry को, I chose it as my main place where I wanted to be. So yeah, that was my main reason. Smile. तो आपने जो चूज़ किया दैट इज़ ए वन जर्नी। Yeah. लेकिन चॉइस से बड़ी जो समस्या है यूके के अंदर स्पेशली डेंटिस्ट को लेके वो है नंबर ऑफ लिमिटेड सीट्स। Okay. कितने 10,000 के आसपास तो एनएचएस में अभी वैकेंसीज हैं जो फिल नहीं हो पा रही। फिर प्राइवेट जो सेक्टर है डेंटिस्ट का वो उसके अंदर भी डेंटिस्ट करीब करीब 16 से 20,000 लोगों के ऊपर एक डेंटिस्ट बन पा रहा है। Yeah. तो ये जो इतना डिफ़िकल्ट प्रोसेस है जो आपने क्रैक करा बहुत इजीली फर्स्ट टाइम के अंदर। Easy नहीं था। आपने इजीली just saying it, yeah. आपने इजीली क्रैक करा क्योंकि फर्स्ट टाइम वाज एज पर माय रिसर्च, हमारी भी 2 बंदों की टीम है जिन्होंने रिसर्च करी है। तो हमने देखा है कि आपने हर एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था। Yeah. तो ये एग्ज़ाम कितना डिफ़िकल्ट होने के बावजूद आपने जो क्रैक किया और काफ़ी सारे बच्चों को आपने उसके बाद में हेल्प करी है जिनको यूके में आए हैं। और जहाँ तक मेरे पास आपके रेफरेंसेस से हमने पता करा है कि आप जिस तरीके से उनको थोड़ा बहुत भी गाइड करते हैं तो दे इजीली क्रैक दैट एग्ज़ाम। तो उस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा बताइए। और यूके के अंदर जो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना बड़ा 5 मिलियन पाउंड्स की ये पर वीक इंडस्ट्री है, तो इस इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है और ये एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और कैसे ये
आपने क्रैक किया, और बच्चों को जो जाना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी डेंटिस्ट है इंडिया के अंदर, उनके लिए कोई टिप्स वगैरह आप इसके अंदर शेयर करें? Absolutely. I mean, the thing was, UK का पैटर्न है ना, it's a very straightforward. All we have to do is not be confused and be consistent. So, first you spoke very highly about me, thank you. So, to start with, you have to make up your mind कि UK professionals, any profession you take, dentistry is a very small part of it, any profession you take, you got to be ready for learning. You cannot be non-consistent. You cannot be like, okay, मैं dentist बन गई, मैं doctor बन गई, and my job is done. You got to be on the ladder. It's like the steps of the ladder. Talking about the beginning, अगर आप decide करते हो कि हाँ, I am a dentist, now I want to flourish my academic part or my professional part in UK, you have to first go through an exam, which is called as a ORE or LDS. So OREs, and मैंने दिया था वो था Overseas Registration Exam, because of some legal reasons उस time LDS हो नहीं रहा था. LDS is conducted by the Royal College of Surgeons, whereas ORE is conducted by GDC, which is called as the General Dental Council. So ये council है जो आपको register करती है और आपको certificate देती है कि आप अब dentistry practice कर सकते हो. So talking of the exam that you were asking me the question about, first exam is a theory exam, which is in 2 phases. One is day 1 and day 2. That's what we call it as, day 1 and day 2. Simple. एक होता है नॉन क्लिनिकल, तो जो 5 साल का हमारा सार है, जो हमने 5 साल यहाँ पर किसी भी कंट्री में फॉर दैट मैटर वो डिफिकल्ट पढ़ाई की है, दे टेस्ट यू ऑन दैट. बट ट्रस्ट मी, जो अगर आपने एक्चुअली में टारगेट पॉइंट्स को टिक किया है ना, बिकॉज नाउ गूगल हैज ऑल द इंफॉर्मेशन, फेसबुक हैज ग्रुप्स, इंस्टाग्राम हैज, अगर कोई अभी गूगल भी करेगा ना, फेसबुक पे भी और कहीं पर भी कि आई वांट टू गेट इन्वॉल्व इन अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग फॉर ORE, it's accessible. मेरे टाइम पे वो नहीं था, so we had to go through contacts, channels and this kind of a thing. So part 1 is theoretical. You will have to just go through your 5 साल की सारी education, all the subjects जो भी हमने पढ़े. Then part day 1 and day 2 is divided in clinical and non-clinical. आप उससे go through हो जाते हो. It's an easier time क्योंकि अभी आप सिर्फ पढ़ रहे हो. Second phase is the ORE part 2 or LDS part 2, which is more practical, because UK doesn't want you to be just intelligent. They want to be wisely intelligent. They want you to be a person जो उनको represent कर रहा है, because अब तुम UK के dentist हो, so you have to be ethical, you have to be professional, you have to make sure कि तुम अपने काम को सिर्फ काम नहीं समझो, you're helping people to achieve, or you're helping and you're involved with the health of the person. So जो ORE 2 है, it's about that. तो वो आपको basically ethics के बारे में टेस्ट करता है, आपकी practical knowledge कितनी है, आपको suddenly एक question दिया जाता है कि this is a random scenario, आप इसमें deal कैसे करोगे, how you dwell yourself into dentistry. So ORE 2 checks your practical knowledge as mental knowledge as well as your academic knowledge. So उसका percentage rate बहुत कम है. So बहुत सारे dentist ORE 1 में निकल जाते हैं क्योंकि हमें इंडिया में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें academically तो हम काइंड ऑफ बेस्ट है, लेकिन ORE 2 जो है वहाँ पे हम थोड़े से स्टक हो जाते हैं. बट इफ़ यू नो कि आपको एक्चुअली में एक ओपन माइंड से सीखना है, आई वुड ऑलवेज एडवाइस समबडी, जो मैंने किया था ORE 1 और ORE 2 के बीच में, आई वॉज वर्किंग एज अ रिसेप्शनिस्ट इन अ डेंटल प्रैक्टिस. सो आई वॉज काइंड ऑफ सीइंग कि यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि इंडिया से बहुत अलग है. वहाँ पे आपको लोगों से बात करने का एक तरीका है, यू कैन नॉट जस्ट से एनीथिंग यू वांट टू, देयर हैज टू बी अ लॉजिक, क्योंकि एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड मेकिंग इज अ मेन थिंग, क्लिनिकल गवर्नेंस इज अ मेन थिंग. सो वो सब आपको टेस्ट करता है ORE 2. तो माई एडवाइस टू एनीबॉडी हु हैज ऑलरेडी पास्ड ORE 1 is just involve yourself somewhere, enroll yourself in a dental nursing course for example, or be the part of a dental practice. For instance, मेरे practice में भी आते हैं जो overseas dentist है, इंडिया से है, ऑस्ट्रेलिया से है, US से है, and they are working as dental nurse at the moment, because practical feeling लिए बिना आप ORE 2 नहीं कर सकते. So that's why people call it as a difficult exam. हमें सब पता है, but बताना क्या है वो आपको practicality बताती है. So my advice to anybody who's preparing, ORE 1 आपको आपकी academics पे base करता है, test करता है, एंड ORE 2 उसको एज अ पर्सन जज करता है. और UK want people, they don't want dentist, they want human dentist, who can relate with people. So that's one thing. आपकी जो ये पूरा समराइज अगर हम करें तो थ्योरेटिकल जो है वो इंडिया के अंदर हम बेस्ट हैं थ्योरी के अंदर, क्योंकि कंपटीशन भी इतना ही है और बच्चे जिस हिसाब से फिल्टर होते हैं, तो एक
रटने की और पढ़ने की और वो आदत हमारे बीच में रहती है। Yeah. जो डिफरेंस जहाँ क्रिएट होता है मेरे हिसाब से वर्ल्ड के अंदर, जो आप बता रहे हो उस बात को लेते हुए, कि जो बेस्ट है वो क्यों बेस्ट है, क्योंकि दे केयर अबाउट देयर पीपल। Yeah. और जैसे हमने देखा है कि कई सारे बच्चों की, हम नर्सिंग में या मेडिकल फील्ड कोई सी भी हो, तो अगर हम एप्लीकेशंस पुट अप करते हैं, दे वर्क ऑन 7 C's, आई डोंट रिमेंबर ऑल ऑफ देम, लेकिन उसमें कंपैशन, कैरेक्टर, दे जज दैट आफ्टर 12th। Yeah. कि अगर आपको नर्सिंग में भी जाना है फॉर दैट मैटर, तो आर यू कंपेशनेट इनफ, आर यू having a good character, Absolutely. how as a person you are, then they will Absolutely. select you in medical field। Absolutely. तो Yeah. उसका एंड रिजल्ट क्या आता है कि किसी के पेट में कैंची छूट जाती है इंडिया के अंदर, वो सब चीज़ें फिर नहीं No, पॉसिबल no, होगा। no, no. तो Definitely. ये इनिशियल स्टेज पे रेक्टिफाई करते हैं। और अगर बच्चे ये सोच रहे हैं कि यहाँ रह के वो आप चीज़ सीख जाओगे, तो नहीं, वो क्योंकि यूके के अंदर जाने से आप एज ए पर्सन बहुत डेवलप होते हो, Totally, आपका कैरेक्टर बहुत डेवलप होता Totally, है, yeah. यू बिकम कंपेशनेट, एंड देन ऑल्सो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें एज ए ह्यूमन डेवलप होती है कि स्ट्रेस जो है वो बहुत कम हो जाता है लाइफ के अंदर। हर जगह हॉर्न नहीं सुनाई दे रहा, हर जगह काफ़ी सारी चीज़ें। Totally. तो दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जो अंदर से आपका बिलीफ सिस्टम है उसको चेंज करना पड़ेगा टू पास दिस एग्जाम Absolutely. बेसिकली। Absolutely. थैंक यू सो मच, ये आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया। You're most welcome. तो अभी जो ये है, ये तो एग्ज़ाम का पार्ट हो गया कि हम एज ए डेंटिस्ट हैं, जाने के बाद आपका 2 सेगमेंट में एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट इज़ थ्योरी, सेकंड इज़ प्रैक्टिकल, एंड फॉर दैट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम यू हैव टू प्रैक्टिकली लिव देयर, बिकॉज विदाउट लिविंग देयर इट्स वेरी डिफिकल्ट। If you can, Yes. of course. Yeah, Yeah. if you can. Yeah. अब बात आती है जो बच्चे डेंटिस्ट नहीं बने और वो अभी प्लान कर रहे हैं आफ्टर 12th, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि हाउ दे कैन एनरोल इन डेंटल कोर्सेज, विच आर द बेस्ट स्कूल्स फॉर दैट मैटर? तो उनका क्या प्रोसेस रहेगा जो अभी 12th में ही है? क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ा ये भी टैबू है कि डेंटिस्ट आर नॉट कंसिडर्ड इक्वलेंट टू द डॉक्टर्स, लाइक द MBBS कैटेगरी, क्योंकि उसमें उनको लगता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट। फिर यहाँ पर डेंटिस्ट की जो इनकम है और जो डॉक्टर MBBS वालों की इनकम है, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। Absolutely. तो ये 2 चीज़ें हैं कि क्या 12th के बाद प्रोसेस रहती है, और दूसरी वहाँ पे एज ए डेंटिस्ट कितनी रेपुटेशन है, क्योंकि इंडिया में तो काफ़ी डिवाइडेशन है MBBS और इसके बीच में। तो हाउ इट इज़ इन UK एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग देयर? Well, if you like इंडिया में क्या प्रोसेस है, एज यू सेड, कि बहुत डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं, बट देयर इज इम्बैलेंस। दांत भी पार्ट है हमारी बॉडी का, इज बहुत वाइटल पार्ट है, बट स्टिल इसको इजी समझते हैं कि यू नो ज़रूरत नहीं है अभी इतना ज़्यादा। बट अगर द पीपल हु आर डूइंग देयर 12th स्टैंडर्ड एंड दे वांट टू रियली परस्यू डेंटिस्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी हैंडफुल ऑफ पीपल हु वांट टू डू दैट बिकॉज ऑफ दैट मेंटालिटी कि हमें तो MBBS में जाना है, अगर नहीं होता तो हम BDS में जाएंगे। And I am one of those. I was like that 15 years ago, but I thank God every single day for that because in UK, more than equal, you are over. With due respect, over means to say compared to medicine graduates. The reason why I'm saying it, क्योंकि dentistry में क्या है कि dentist, you can open your own practice. Number one. You have a certain because आप हॉस्पिटल नहीं खोल सकते वहाँ पर, डेंटिस्ट्री खोल सकते हो, एंड सेकेंडली द ओवरऑल सोशल रेपुटेशन एंड इकोनॉमिकल रेपुटेशन you carry to a good extent. After 12th, if there are children or there are teenagers who want to pursue a dentistry as a career, they need to put an application in the colleges they want to go. जब उनका प्री बोर्ड होता है, जैसे हमारे बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स होते हैं, दैट इज अराउंड द टाइम जब एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ मार्च में एग्जाम होते हैं, प्री बोर्ड शायद नवंबर में होता है। सो नेक्स्ट ईयर के लिए बिकॉज आपको प्रिडिक्टेबल ग्रेड चाहिए होते हैं, तो आपके प्री बोर्ड्स के बेसिस पे दे आर कॉल्ड एज योर प्रिडिक्टेबल ग्रेड्स इन UK एज वेल, क्योंकि UCAS आपको स्कोर देता है उसके हिसाब से। सो द स्कोर इन योर कोर सब्जेक्ट्स विच इज फॉर देम इट्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ईदर फिजिक्स और मैथ्स। अपने यहाँ पे ऐसा डिफरेंट है, लेकिन फॉर देम दिस इज द चॉइस। सो अगर कोर सब्जेक्ट्स में आपका AAA आता है, जिसको हम बोलते हैं 80% and above, then you get into the core subjects around 66 points you get. So वो आप अगर यहाँ पे आप above average student हो और आपके biology, chemistry, physics या maths में combined इतना percentage बनता है, they will send you an offer letter. And जब आपका
बोर्ड में जब आप फाइनली क्वालिफाई करते हो तो प्रिडिक्टेबिलिटी से आप बहुत नीचे नहीं जाओगे, मे बी 3% ऊपर 3% नीचे, और ऑफर वापस भी वो ले सकते हैं अगर आपने बोर्ड्स में इतना अच्छा अटेम्प्ट नहीं किया. एंड देन ऑफ कोर्स दे विल सेंड यू एन ऑफर लेटर. किंग्स कॉलेज, लंदन के जो डेंटल कॉलेज है, क्वींस एंड मैरी हुआ, किंग्स हुआ, दे आर द लीडिंग डेंटल कॉलेजेस. उसके बाद बर्मिंघम है, उसके बाद बेलफास्ट है, एबरडीन है, स्कॉटिश यूनिवर्सिटीज़ है. स्कॉटिश का लेवल डिफरेंट है, उनका AAED कुछ ऐसा होता है. आई प्रोबेबली कुड बी रॉन्ग, सो यू इसमें कोई प्रोबेबली एग्जाम भी देना होता है जैसे इंडिया में आपको एग्जाम देना पड़ता Yes, there may, depending on the university. Like if you're applying for King's, for instance, I want to be in the best university, so you have to go through an entrance exam. After you are AAA, and then you will have to sit in an interview.